Good morning, students. I hope you all are fit and fine at your places and doing your work properly. Today, I am going to teach you current affairs. Today, our topic is the verdict of Supreme Court on Shaheen Bagh protest case. Okay, students, the Supreme Court will pronounce its judgment on 7th October on Wednesday on the balancing of right to protest against the right of the public movement of public in the background of marathon Shaheen Bagh protest against the controversial of CAA. CAA beta Citizen Amendment Act. Okay students, first of all we will talk about where is Shaheen Bagh situated. Shaheen Bagh is a neighborhood in South Delhi. Okay students, it is on the UP border and southernmost colony of the Okhla area. Okay students, now it is situated along the banks of Yamuna river. Now we will talk about Shaheen Bagh protest. Shaheen Bagh protest at the begin from December 15, 2019. ये प्रोटेस्ट बेटा 15 दिसंबर 2019 को स्टार्ट हुआ था. उन्होंने ये विरोध शुरू किया था 3 days after the passage of Citizenship Amendment Act CAA. Okay students, in both houses of parliament and the police intervention that followed against student at Jamia Millia Islamia University. Okay students, ये स्टूडेंट्स थे जामिया मिलिया इस्माइलिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया. It has become the longest ongoing protest against CAA, NRC and NPR. ओके स्टूडेंट्स, ये सबसे लंबा विरोध चला था. किसके खिलाफ चला था बेटा? CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट. सेकंड, NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स. थर्ड, NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर. स्टूडेंट्स, now we will discuss on what is CAA. CAA क्या है बेटा? On December 12, 2019, the Citizenship Amendment Bill became the CAA यानी कि Citizenship Amendment Act after being passed by the Parliament. It provides the grant of Indian citizenship to those Hindus, Sikh, Buddhists, Jains, Parsis and Christians who migrated from Afghanistan, Pakistan and Bangladesh on before December 31, 2014. The act has drawn opposition across the country as it omits Muslims in the list of communities considered for the grant of citizen. देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या चीज़ है, ये विरोध क्यों हुआ, ये CAA क्या है, अब देखिए इस पर डिस्कशन हम करते हैं. जो हमारे नेबरहुड कंट्रीज़ हैं और जहाँ पर मुस्लिम की पॉपुलेशन ज़्यादा है वो हमारी 3 कंट्रीज़ हैं. सबसे पहले बेटा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. ये हमारे 3 नेबरहुड कंट्रीज़ जहाँ पर मुस्लिम की पॉपुलेशन ज़्यादा है. वहाँ पर और भी धर्म के लोग रहते हैं लाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म के. और वो जो इन रिलीजन्स के जो लोग वहाँ रहते हैं जिनको भी वहाँ किसी भी प्रकार की कोई डिफ़िकल्टीज़ हो रही है और वो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो वो प्राप्त कर सकते हैं. अगर वो लोग वहाँ पर उनको कोई भी चीज़ की डिफ़िकल्टीज़ हो रही है और वो यहाँ अपने आप को सिक्योर समझ रहे हैं, अगर वो यहाँ आना चाहते हैं तो वो यहाँ आ सकते हैं. और CAA ये जो बिल पास होगा इसके थ्रू वो यहाँ की सिटीजनशिप प्राप्त कर सकते हैं यानी कि इंडिया की. अब स्टूडेंट्स, सिर्फ मुस्लिम ऐसे हैं जो यहाँ की सिटीजनशिप प्राप्त नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि उनके पास पहले ही उनके कंट्रीज़ हैं जहाँ उनकी पॉपुलेशन रेशो ज़्यादा है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ बेटा हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द शाहीन बाग प्रोटेस्ट. शाहीन बाग प्रोटेस्ट में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा था यानी कि इसका विरोध कौन कौन कर रहा था. इस प्रोटेस्ट में 10 से 20 वुमेन स्टार्टिंग में थी. उसके बाद ये इतना ज़्यादा फैल गया, प्रेस के थ्रू ये बात मीडिया
के थ्रू इंटरनेशनल और नेशनल तक बात चली गई और इसमें हज़ारों से ज़्यादा लोग इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने लग गए। अब देखिए, दिस प्रोटेस्ट which began with only 10 to 20 women later attracted 1,000 others. Elderly women aged over 80 and 90 years, जो 80 से 90 साल की औरतें थी, और स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, मुस्लिम women, children, lawyer and several other people have also joined the protest. उन्होंने भी इन सब लोगों ने भी प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया और इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। The sit in the protest has received worldwide attention and being covered by the press, both national and international. ये प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा फैला मीडिया के थ्रू, ये बात नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जगह तक फैल गई। ओके स्टूडेंट, ये प्रोटेस्ट जो है बेटा 100 डेज तक चला था। 15 दिसंबर 2019 से स्टार्ट हुआ और 23 मार्च तक चला था। जब ये लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के कारण इन्हें वहाँ से हटाया गया, लेकिन तब तक भी इन्होंने अपना प्रोटेस्ट करना स्टॉप नहीं किया था। Now we will discuss on blocking of roads. Protesters at Shaheen Bagh have blocked the road connecting Noida to Kalandi Kunj, causing inconvenience to travelers and students. लोगों ने, प्रोटेस्टर्स थे बेटा, जो विरोधी थे, उन्होंने पूरा रोड ब्लॉक कर दिया था नोएडा से लेकर कालंदी कुंज तक। ठीक है स्टूडेंट्स, और लोगों को और स्टूडेंट्स को इतनी इनकन्वीनियंस हुई कि उन्हें दे स्टक इन द रोड फॉर मैनी आवर्स और मैनी डेज, वो कई दिनों तक, कई घंटों तक रोड जाम में फंसे रहे। इसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हुआ और जो है कॉमन पीपल को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। अब बेटा हम डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस विरोध के खिलाफ या इस विरोध पर क्या अपना डिसीजन लिया, वर्डिक्ट क्या किया उन्होंने। द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द CAA इन दिल्लीज शाहीन बाग कैन नॉट क्रिएट इनकन्वीनियंस टू पीपल बाय ब्लॉकिंग रोड। बेटा सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, बट आप एक कॉमन पीपल को या स्टूडेंट्स जो भी हैं उनको आप कोई डिफ़िकल्टीज नहीं दे सकते, आप रोड ब्लॉक नहीं कर सकते। अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो आप उसके लिए एक डेजिग्नेशन प्लेस चुनिए जहाँ से रोड ब्लॉक ना हो, लोगों को डिफ़िकल्टीज ना आए। ऐसे डेजिग्नेशन प्लेस में बेटा दिल्ली के अंदर जंतर मंतर आता है जहाँ पर लोग प्रोटेस्ट करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट सेड there is a law and people have a complaint against it, the case is pending in the court. ये एक कानून है, अगर लोगों को इसके खिलाफ कोई भी कंप्लेन है तो ये केस बेटा अभी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद सम पीपल आर परफॉर्मिंग, कुछ लोग अभी भी इसका विरोध करते जा रहे हैं और अब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दे हैव द राइट टू परफॉर्म बट कैनॉट ब्लॉक द रोड्स, उन्हें राइट है कि वो इस प्रोटेस्ट के खिलाफ अपना विरोध कर सकते हैं, लेकिन आप रोड ब्लॉक नहीं कर सकते। सच एन एरिया कैन नॉट हैव इनडिफाइनाइट परफॉर्मेंसेज, इफ़ यू वांट टू परफॉर्म इट मस्ट बी इन द डेजिग्नेटेड लोकेशन फॉर इट्स परफॉर्मेंस। अगर आप कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सुनिश्चित एक जगह चुनिए जहाँ से किसी लोगों को कोई भी लोगों को दिक्कत ना आए। देखिए बेटा, आर्टिकल 19 एक ऐसा एक्ट है जिसके थ्रू हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का, यानी कि हमें अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया है, पर आप अपनी बात रख सकते हैं। आपको कोई गवर्नमेंट का एक्ट अगर आपको नहीं पसंद आ रहा, आप विरोध कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लोगों को कोई भी इनकन्वीनियंस ना दें जिससे रोड ब्लॉक ना करें। आप एक डेजिग्नेशन प्लेस चुनें, आप वहाँ बैठकर विरोध करें। तो बेटा ये हमारा टॉपिक था, द वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन शाहीन बाग प्रोटेस्ट केस। आई होप बेटा you understood this topic. Thank you.